Hello my little students, welcome to all in EVS class. So student, in EVS our 6th lesson is completed, right? Now today I am going to explain you lesson number 7 and our lesson name is saying without speaking. It means हमें बोलना भी है, हमारे फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करना है, बट विदाउट स्पीकिंग, बिना बोले. फाइन. सो लेट्स सी व्हाट इज गिवन इन अवर lesson. Okay. Lesson 7, saying without speaking. Most of us can hear and speak, but there are some people who can neither hear nor speak. These people talk through actions. They understand what the other person is saying by studying their lip movements. Fine. So student, yes, we all are normal person, right? So that is why we can hear and speak very well, right? But some people are there, they cannot speak or they cannot hear, है ना? So this type of person talking through the action. वो कैसे talking करते हैं एक दूसरे के साथ action से करते हैं, because they can't listen, they can't hear, ओके, दे कांट स्पीक, वो बोल ही नहीं सकते, सुन ही नहीं सकते, तो वो एक दूसरे के साथ कॉन्वर्सेशन कैसे करेंगे? यस, बाय द एक्शन, है ना? दे अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग. यस, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग, बट बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स. हाउ कैन दे अंडरस्टैंड बेटा? बाय स्टडिंग देयर लिप मूवमेंट्स, राइट? वो जो भी सामने वाला पर्सन बोल रहा है, उनके लिप्स के मूवमेंट की रीडिंग से वो लोग समझ पाते हैं, बिकॉज वो लोग सुन तो सकते नहीं हैं, ठीक है? सो वो लोग उनके लिप्स की रीडिंग करते हैं एंड दे कैन अंडरस्टैंड वेल. All of us cannot do everything. Yes, we all are not doing everything, right? Some of us sing well, others write good poetry, some can climb trees quickly while others can run fast, है ना? Some can row well, others can sing in tune. We are all special in our own ways. सो स्टूडेंट, सब में अलग अलग एबिलिटी होती है. यस, कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छी पोइट्री लिख सकता है. यस, कोई पेड़ पे जल्दी से चढ़ सकता है, तो कोई फास्ट रनर होता है. किसी की ड्राइंग अच्छी होती है, राइट? कोई ट्यून में गीत को अच्छे से गा सकता है, राइट? सो हम सब में ऐसी एबिलिटी होती है. हैंस इन स्कूल वी कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर. और हम स्कूल में भी एक दूसरे से सीखते हैं, राइट? लाइक ऑल चिल्ड्रन who cannot speak and hear also go to school to read and write. So student, we all are normal students, so we are understand everything, and yes, we are learn so many things in our school. But do you know, some students are there, they can't listen, they can't speak, and they are also go to the school. वो भी स्कूल जाते हैं. in school साइन लैंग्वेज इज टॉट टू दैम. और उन लोगों को जो स्कूल में भेजा जाता है, उन्हें क्या सिखाया जाता है? सो बिकॉज ऑफ नॉट लिसनिंग एंड नॉट स्पीकिंग, टीचर टॉट दैम साइन लैंग्वेज. उनको साइन लैंग्वेज, इशारे की भाषा सिखाई जाती है, राइट? So let us read about a child who cannot hear yet who can do many things. So student, here one poem is given, and in this poem one girl is there, and she can't speak, she can't hear, right? But she can do many things, right? So let's see what is given in this poem. Me and my sister. Small girl Chaku, she cannot hear. She is deaf by birth. So this girl name is Chaku, right? And she can't hear. वो बचपन से ही बहरी थी. डेफ मीन्स व्हाट बेटा? बहरी, ठीक है? Her elder brother is Nandu. So what is her elder brother's name? Nandu. Okay, Nandu and Chaku play together. So both are playing together, है ना? Like we are playing with our brother and sister, right? So like this here, Nandu and Chaku both are brother and sister. They are playing together. Chaku plays the piano very well. So Chaku को क्या आता था बेटा? Yes, she plays the piano very well. वो पियानो बहुत अच्छा बजाती थी. डू यू नो ना बेटा, एल्डर ब्रदर मीन्स वॉट? यस, एल्डर ब्रदर मीन्स बड़ा भाई, ठीक है? सो नंदू इज चकूस एल्डर ब्रदर. वो चकू का बड़ा भाई था. सी लाइक्स टू फिल द डीप रम्बलिंग कॉर्ड्स, बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग. सो स्टूडेंट,
रम्बलिंग इट मीन्स गूंज, कॉर्ड्स मीन्स तार। सो उसे जो गिटार की आवाज़ थी, गूंज थी, उसको डीपली फील करना बहुत पसंद था, बट सी विल नेवर बी एबल टू सिंग, बट वो गा नहीं सकती थी बिकॉज सी वॉज डम, यू नो ना बेटा, वो बोल नहीं सकती थी, दैट इज़ वाई सी कांट सिंग वेल, है ना। सी कैन नॉट हीयर द ट्यून, इट मीन्स वो बोल भी नहीं सकती थी और ट्यून को सुन भी नहीं सकती थी। फाइन। सी लाइक्स टू लिप, टू टम्बल, टू रोल, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स। उसे लिप करना इट मीन्स कूदकना, जंप करना, टू टम्बल मतलब लुढ़कना, टू रोल मतलब रोल करना, ठीक है, टू क्लाइंब टू द टॉप ऑफ द मंकी बार्स, मंकी बार पे चढ़ जाना बहुत पसंद था, राइट। सी स्टूडेंट, दिस इज द इमेज ऑफ मंकी बार्स, राइट। नाउ माई सिस्टर हैज स्टार्टेड गोइंग टू माई स्कूल। अब मेरी सिस्टर ने मेरे साथ मेरी स्कूल में जाना शुरू कर दिया था। Although our mother still helps her lip read at home, जो कि मेरी ममा उसे अभी भी लिप रीड घर पर ही सिखाती थी, लिप रीडिंग करना, बिकॉज सी कांट लिसन प्रॉपरली, ठीक है, वो सुन नहीं पाती थी, तो वो कैसे समझे कि सामने वाला पर्सन क्या बोल रहा है, हाउ कैन सी अंडरस्टैंड, यस बाय लिप रीडिंग, है ना। सो हर ममा हेल्प हर टू लिप रीडिंग। The teacher and children do not understand every word she says, like sister or water or thumb, right? So teacher and children, sometimes teacher and children getting confused, है ना, they can't understand her every word, वो चकू के सारे वर्ड को नहीं समझ पाते थे। वो जैसे कि वो कहती थी सिस्टर और वाटर और थंब, सो टीचर एंड चिल्ड्रन कांट अंडरस्टैंड दिस वर्ड। I wore my sunglasses yesterday. See student wore. So it is the past tense of wear. Wear means पहनना, ठीक है। So I wore मतलब उसने पहना था। I wore my sunglasses yesterday. कल मैंने मेरा sunglasses पहना था। It means spectacle, चश्मा पहना था। The frames were very large और उसका frames था वो बहुत बड़ा था। The lenses are very black और lens था वो black था। माई सिस्टर मेड मी टेक दैम ऑफ वैन आई स्पोक। तो मैंने कल जो ग्लास पहना था वो उसका फ्रेम बड़ा था और वो ब्लैक था, सो मेरी सिस्टर ने उसको निकाल दिया जब मैं बोलने जा रहा था, जब मैं कुछ बोल रहा था, तब मेरी सिस्टर ने उस सन ग्लासेस को रिमूव कर दिया, हटा दिया। टेक ऑफ मतलब हटा देना, ठीक है। सो वाई चकू डू लाइक दिस, चकू ने ऐसा क्यों किया होगा बेटा। So when her brother spoke something that time चकू can't see his eyes properly, ठीक है, चकू उसके ब्रदर की आइज़ को ठीक से देख नहीं पा रही थी, इसलिए उसने अपने ब्रदर के सनग्लासेस को हटा दिया, राइट। ऐसा क्यों किया होगा बेटा, बिकॉज सी कांट स्पीक, सी कांट हियर, है ना। सो वो लिप रीडिंग से और आँखों से रीडिंग करती थी और सामने वाले पर्सन मीन्स उसके ब्रदर के एक्सप्रेशन को कैच कर रही थी कि उसका भाई क्या बोल रहा है, ठीक है। सो आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू ना अबाउट आइज़ के हमारी आँखें भी बहुत कुछ कह जाती है, कभी कभी बिना बोले हमारी आँखें भी बहुत कुछ कहती है। सो हियर चकू कांट लिसन प्रॉपरली, है ना, वो सुन नहीं पाती थी, तो वो अपने भाई की भाषा को, अपने भाई के कॉन्वर्सेशन को अच्छे से समझना चाहती थी, दैट इज़ वाई सी रिमूव द स्पेक्टिकल्स, राइट। एंड सी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट डू माई ब्राउन आइज से टू हर ब्राउन आइज, एंड वो ये समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरी ब्राउन आइज है वो मेरी सिस्टर के ब्राउन आइज को क्या कह रही है, राइट। दिस पोएम इज रिटन बाय जीन वाइटहाउस पीटरसन। फाइन। सो स्टूडेंट्स, अवर आइज टेल अ लॉट, है ना, हमारी आंखें बहुत कुछ कहती है। स्मॉल चिल्ड्रन टेल अ लॉट थ्रू देयर फेस एंड हैंड्स इवन बिफोर दे लर्न टू स्पीक, लाइक अ स्मॉल बेबी दे कांट स्पीक प्रॉपरली, सो दैट टाइम दे यूज देयर आइज एंड देयर हैंड्स, है ना, एंड दे ट्राई टू explain their feeling, है ना, they try to express their feeling by the hands, by the action, right। जैसे आपके घर में आपके छोटे ब्रदर सिस्टर होंगे, अब वो अभी प्रॉपरली बोल नहीं पा रहेंगे, तो वो क्या करते होंगे, जैसे वो एक्शन थ्रू अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करते होंगे। वो गुस्से होते होंगे तो उनकी आँखों से हमें पता चल जाएगा कि यस ये गुस्सा कर रहा है, ठीक है। वो खुश होगा तो फेस से हमें पता चल जाएगा कि वो खुश है,
So though they can't speak, but we understand to see their eyes and their action, right? एंड यस दे अंडरस्टैंड अ लॉट टू, वो समझते सब कुछ है लेकिन वो अभी बोल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि अभी उन्होंने बोलना सीखा नहीं है, वो लैंग्वेज सीख रहे हैं। सो जब वो लोग सीख जाएंगे तब तो वो हमारे तरह नॉर्मल हो जाएंगे, बट जब तक वो लोग लैंग्वेज नहीं सीखे तब तक वो एक्शन थ्रू, आइज थ्रू, है ना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। Now see here, you must be wondering what kind of faces these are. They have no eyes, no nose, no mouth. So student, in your textbook this type of faces are given, right? Different faces are given. So we will see it one by one. So this type of face is given in your textbook. So you need to draw here eyes, nose and mouth, okay? And whatever feeling is given here, so you need to mention this type of feeling on their face, on his face, है ना? I already draw here eyes, nose and mouth. Let's see what is given in this paragraph. You have to make these but only after reading what is written अलॉन्ग साइड, ठीक है। सो हमें यहाँ पर साइड में पैराग्राफ में पहले रीड करना है कि कौन सी फीलिंग हमें इनके फेस पे कौन सा एक्सप्रेशन ड्रॉ करना है। फाइन, दिस इज आफ्ताब, सो दिस इज द बॉय एंड हिज नेम इज आफ्ताब। हिज फेवरेट टॉय हैज़ फॉलन डाउन एंड ब्रोकन, तो उसका जो फेवरेट टॉय था, फेवरेट खिलौना था, वो गिर गया और टूट गया। ही इज़ सैड, सो यस, तो वो सैड हो गया, है ना। हमारा भी फेवरेट टॉय टूट जाएगा तो हम भी तो उदास हो जाएंगे। सो लाइक दिस ही वॉज सैड। हाउ विल हिज फेस लुक, तो उसका फेस कैसे दिखाई देगा। सो यू नीड टू ड्रॉ लाइक दिस इन योर टेक्स्ट बुक। फाइन, देन सी हियर, दिस इज जूली, हर लिटिल सिस्टर वॉज बॉर्न जस्ट यस्टरडे, कल ही उसकी लिटिल सिस्टर का बॉर्न हुआ है, ठीक है। सी इज़ वेरी एक्साइटेड, सो सी इज़ वेरी एक्साइटेड टू मीट हर। हाउ विल हर फेस लुक, तो उसका फेस कैसे दिखाई देगा। यस, सो हियर विच फीलिंग इज गिवन बेटा, एक्साइटेड। सो सी हियर आई ऑलरेडी ड्रॉ हियर आईज, नोज एंड माउथ, सो दिस इज द फेस ऑफ एक्साइटेड। फाइन, नाउ सी स्टूडेंट, दिस इज रुतवास मदर, ये रुतवा की ममा है। टुडे वाइल रुतवा वॉज टेकिंग आउट द बॉटल ऑफ पिकल फ्रॉम द किचन, इट फेल फ्रॉम हर हैंड एंड ब्रोक। आज जब रुतवा किचन में से पिकल, पिकल मतलब आचार, सो आचार की बरनी लेकर आ रही थी तब उसके हाथ से वो गिर गया और टूट गया। ड्रो द लुक ऑन हर मदर्स फेस, सो उनकी ममा का एक्सप्रेशन कैसा होगा। यस, डेफिनेटली हर ममा बिकम एंगर, है ना, ममा गुस्सा की होगी। सो यहाँ पर हमें वो एक्सप्रेशन उनके फेस पे ड्रॉ करना है। आई ऑलरेडी ड्रॉ हियर, राइट। सो यू ऑल्सो डू लाइक दिस। फाइन बेटा, नाउ सी हियर, दिस इज रेहाना, शी इज़ अफ्राइड ऑफ डॉग्स। सो ये रेहाना है और वो डॉग से बहुत डरती है। वाइल प्लेइंग सडनली अ डॉग कैम इन फ्रंट ऑफ हर, जब वो खेलने गई तो उसके सामने अचानक से कौन आ गया, डॉग। हाउ विल रेहानाज फेस लुक, तो रेहाना का फेस कैसा हो जाएगा। सो स्टूडेंट सी, आई ऑलरेडी ड्रो द आईज एंड माउथ, राइट। सो यू नीड टू ड्रो लाइक दिस। फाइन, सो लाइक दिस स्टूडेंट हियर डिफरेंट पिक्चर्स आर गिवन एंड हमने यहाँ पर उनका एक्सप्रेशन बताया। सो इसमें से हमें क्या लर्न करने को मिल रहा है। सो यस, समटाइम्स इट्स हैपन के सामने वाला पर्सन हमें कुछ बोलता नहीं है लेकिन हम उनके फेस के एक्सप्रेशन से समझ जाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है, राइट। By looking at someone's face, we can tell if the person is happy, sad or angry, है ना। हम पर्सन के फेस देख के ही समझ जाते हैं कि वो क्या फील कर रहा है, वो हैप्पी है, वो सैड है या वो एंगर है, राइट। यस और नो। यस, हैज़ इट एवर हैपेंड that you had done some mischief and your mother found out just by looking at your face, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ मिस्चिफ किया है, कोई मस्ती की है, ठीक है, कोई शरारत किया है और आपकी मम्मा को ये पता चल गया है कि आपने शरारत किया है बिना बताए, ऐसा आपके साथ कभी हुआ है। वी कैन टॉक थ्रू डांस एज वेल। यस, हाँ, समटाइम्स हम डांस से भी हमारी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज्ड टू कन्वे फीलिंग्स, सो डांस में हमारे हैंड्स और फेस, आँखों के एक्सप्रेशन, वो हमारे फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड मुद्रास एंड भाव्स। हाथों के एक्सप्रेशन को मुद्रास बोलते हैं एंड फेस के एक्सप्रेशन को भाव बोलते हैं। फाइन, सो स्टूडेंट, व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस लेसन।
Yes, we did learn without saying and without speaking, we can express our feelings through the action and through the face expression, right? Thank you for watching.